So next function is f of x equal to 10x. This is our third function. We have to define its domain and range. So 10x is nothing but the sin x upon cos x. Sin x upon cos x. So this is one rational function, and for rational function we have to say that denominator of any rational function must not be equal to 0. So here 10x is defined for the values of all the x when cos x is not equal to 0. है ना, 10x के लिए उसका डिनोमिनेटर cos x कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. We know that cos x will be 0 for which values of x when x is equal to and odd multiples of pi by 2. याद करो, when x equal to odd multiples of pi by 2, that means 2n plus 1 pi by 2. For these values of x, our cos x will be 0, but here cos x must not be equal to 0. That means x must not be equal to 2n plus 1 pi by 2. Done. The value of x must not be odd multiples of pi by 2. Then and then our 10 will be defined. So here you can take x as any value. That means range of sign is real number, but out of that real numbers you have to subtract these values of x. So that is our domain. So domain of this 10 is nothing but the all real numbers. You can take this x as a all real numbers except the value of x for which our cos x is 0. So cos x becomes 0 for all the odd multiples of pi by 2. So here you have to subtract that odd multiples of pi by 2. That is 2n plus 1 pi by 2. So for these values of x, you can define your 10x. So this is domain of 10. Range. What is the range of 10? The range of 10 is nothing but the odd real numbers. It will be all real numbers. है ना, कैसे आई? So चलो देखते हैं ग्राफ इसका. So we have to draw the graph of this 10x function. So for that we will consider the x-axis and y-axis. Then this is our x-axis, this is our y-axis. This is 0. Now this one is pi by 2. This is pi, 3 pi by 2, 2 pi. One revolution complete. You can again start another revolution, है ना, up to infinite. Now clockwise direction. So we are getting minus value. Minus pi by 2, minus pi, minus 3 pi by 2, minus 2 pi, and it will goes up to infinite. So now what is the condition for the 10x? 10x is not defined on the odd multiples of pi by 2, है ना. x की वैल्यू हमें कौन सी नहीं लेनी है? पाई बाय 2 के ओड मल्टीपल्स. पाई बाय 2 के ओड मल्टीपल्स क्या होते हैं? पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 और माइनस में माइनस पाई बाय 2, माइनस 3 पाई बाय 2. ये सब पर हमारा 10x डिफाइन नहीं है. डन. cos x की वैल्यू वहाँ पर 0 होती है, तो हमारा x पाई बाय 2 पर डिफाइन नहीं है, तो वहाँ पर हम डैश लाइन डॉटेड लाइन कर देते हैं ऐसे. चलो कि यहाँ पर ये x की वैल्यू हमें पाई बाय 2 कभी भी लेनी नहीं है, तो ये हमारा रिस्ट्रिक्शन है कि यहाँ पर हम पाई बाय 2 ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 को डिफाइन नहीं करेंगे, है ना. तो पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, उसके आगे आएगा 5 पाई बाय 2, वहाँ पर सभी जगह पर ऐसे डैश लाइन आएगी. यहाँ पर माइनस पाई बाय 2 पर ये भी हमें कंसिडर नहीं करना है, ये वैल्यू एक्स की हमें नहीं लेनी है, क्योंकि यहाँ पर हमारा 10x डिफाइन नहीं होता है. डन. डॉटेड लाइन कर दी. नाउ कंसिडर दिस पॉइंट x इक्वल टू 0. दैट मीन्स, है ना, इफ यू आर टेकिंग अवर x इक्वल टू 0, तो क्या होगा देखो, when x tends to 0 or we can take x equal to 0, so value of our 10x will be sin 0 upon cos 0, है ना. फॉर x इक्वल टू 0 यहाँ पर 10 की वैल्यू क्या होगी? इट विल बी sin 0 upon cos 0, which is 0 by 1, which is 0. So for x equal to 0, value of 10 will be 0. So यहाँ पर ये 0 होगा. Now if you take x equal to pi by 2, है ना, x equal to pi by 2, लेकिन pi by 2 नहीं लेना है, तो pi by 2 नहीं लेना है तो क्या करना पड़ेगा? You have to take the value of x tends to pi by 2. ये tends to pi by 2 क्या है? इसका पूरा नॉलेज आपको जब लिमिट स्टडी करेंगे ना तब आएगा, लेकिन अभी इसका मतलब आप समझो, है ना. मैंने x इक्वल टू पाई बाय 2 नहीं लिया है, क्यों? क्योंकि वो तो रिस्ट्रिक्शन पर है ना. वी कांट टेक द वैल्यू ऑफ x एज ए पाई बाय 2, लेकिन अब पाई बाय 2 नहीं ले सकते,
तो पाई बाय टू के एकदम नजदीक वाली वैल्यू तो ले सकते हो ना, वहां पर तो कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको क्या करना है, वी हैव टू निगलेक्ट द वैल्यू ऑफ पाई बाय टू, लेकिन पाई बाय टू के एकदम नजदीक चले जा सकते हो आप, है ना। So x tends to pi by 2 means we have to consider the value of x very nearer to pi by 2, पाई बाय टू के एकदम नजदीक वो वाली वैल्यू आपको कंसिडर करनी है। तो क्या होगा, सो इट विल बी साइन पाई बाय टू अपॉन कॉस पाई बाय टू, है ना। इफ यू आर टेकिंग x टेंस टू पाई बाय टू, यहाँ पर लिखते हैं, इफ यू आर टेकिंग x टेंस टू पाई बाय टू when value of x is very nearer to pi by 2, so what we are getting, we are getting sin pi by 2 upon cos pi by 2. So what is sin pi by 2? It is minus 1 and cos pi by 2 is 0. So minus 1 upon 0, that is nothing but the minus infinity. So when x tends to this pi by 2, ये 1 by 0 होगा, so plus infinity. So when x tends to pi by 2, at that time our tan function will tends to प्लस इन्फिनिटी। तो जैसे जैसे x हमारा पाई बाय टू के नजदीक जाएगा, तब तक क्या होगा, हमारा जो फंक्शन है, दिस इज अवर टेन एक्स, है ना, y इक्वल टू टेन एक्स, और फंक्शन विल बी टेंस टुवर्ड्स दी पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो फंक्शन ऐसे धीरे धीरे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा और टच नहीं करेगा, ऐसे आपको ये इन्फिनाइट तक जाएगा। क्लियर। सिमिलरली इफ यू आर टेकिंग x टेंस टू माइनस पाई बाय टू, माइनस पाई बाय टू ले लो, ये होगा साइन ऑफ माइनस पाई बाय टू डिवाइड बाय कॉस ऑफ माइनस पाई बाय टू। सो साइन ऑफ माइनस पाई बाय टू हमने स्टडी किया था, साइन ऑफ माइनस एक्स, साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, इट विल बी माइनस साइन एक्स। सो साइन ऑफ माइनस पाई बाय टू विल बी माइनस साइन पाई बाय टू, एंड दिस कॉस माइनस पाई बाय टू, कॉस को ऐसे किया था कि कॉस माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, so this will be cos pi by 2, so this will be minus 1 upon 0. So here our 10 will be tends to minus infinite. So when x tends to minus pi by 2, जैसे जैसे x की वैल्यू माइनस पाई बाय टू के नजदीक जाएगी, है ना, ऐसे 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 नजदीक, तो क्या होगा, और 10x फंक्शन विल बी टेंस टुवर्ड्स द नेगेटिव इन्फिनिटी, तो ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा। So it will be goes like this, it will goes up to infinite. Clear. So this is how we are getting our 10x. Similarly, consider pi. So when x tends to pi, our function will tends towards the positive infinity, and for x tends to pi by 2, it will move towards the negative infinity. तो ऐसे आपको ग्राफ मिलेगा 10 का, है ना। तो 10 की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, it will goes up to positive infinity or negative infinity. So positive infinity to negative infinity, all real numbers are, so range of 10 is r. 10 is not defined on odd multiples of pi by 2. So range is r minus 2n plus 1 pi by 2, and this is its graph, है ना। यह ग्राफ आपको याद रखना है। क्लियर स्टूडेंट्स, इसमें किसी को कोई डाउट? चलो 10, उसके बाद आता है क्वाट। So we'll apply same concept for the quat. So now we have to check the domain and range of quat. So function f of x equal to quat x. So what is quat x? It is cos x upon sin x. Again, denominator must not be equal to 0. Here condition is sin x must not be equal to 0 to define our quat x. So our sin x becomes 0. कहाँ पर होता है? For the all integral values of pi. For all integral values of pi, our sin x is 0. But here condition is sin x must not be equal to 0. So x must not be equal to n pi. Done? Then and then our quat x will be defined. So our domain is domain. Numerator, you can take any value of x. So it's a r, but you can't take any value of x which is equal to 0. So x must not be equal to 0. So you have to subtract this n pi. So domain of quat is all real number r except integral values of pi, integral multiples of pi. So domain of quat is r minus n pi. Done? And range. The range of this quat is again all real numbers r. रियल नंबर्स कैसे आएगी, देखो ग्राफ में आपको दिखेगा। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ट्राई करते हैं, है ना। यहाँ पर हम x की डिफरेंट वैल्यूज लेंगे, यहाँ पर हमें y मिलेगा, y इज अवर फंक्शन
फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट द cot x, है ना, x की वैल्यू पर cot x डिफाइन कर रहे हैं। तो दिस इज 0, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई। दिस विल बी माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाय 2, माइनस 2 पाई। चलो, कहाँ पर हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है? ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ पाई, दैट मीन्स पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, माइनस पाई, माइनस 2 पाई पर हमारा क्वाट डिफाइन नहीं है, तो एक्स की वैल्यू हमें कंसिडर करनी नहीं है। तो यहाँ पर एक्स को आपको पाई कंसिडर नहीं करना है, तो पाई पर हम ऐसे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें कंसिडर ही नहीं करना है। ध्यान में रखना है कि ये एक्स की वैल्यू नहीं लेनी है। तो 2 पाई को निगलेक्ट कर दिया, 3 पाई, 4 पाई सब, है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माइनस पाई, माइनस 2 पाई सबको आपको कंसिडर नहीं करना है। तो ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी, डन। यहाँ पर जीरो भी आएगा तो जीरो पर भी यहाँ पर आपकी डॉटेड लाइन ही होगी, है ना, ये जो वाई एक्सिस है ना, ये भी आपकी डॉटेड लाइन ही है। यहाँ पर भी आपको वैल्यू कंसिडर नहीं करना है। तो कौन सी वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं हम? ये बीच वाली कोई भी वैल्यू कंसिडर करो, है ना। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पाई बाय 2। सो इफ x इक्वल टू पाई बाय 2, x इक्वल टू पाई बाय 2, तो क्या होगा हमारा फंक्शन? इट विल बी cot पाई बाय 2। cot पाई बाय 2 इज cos पाई बाय 2 अपॉन sin पाई बाय 2। cos पाई बाय 2 अपॉन sin पाई बाय 2। cos पाई बाय 2 0, sin पाई बाय 2 1, 1 अपॉन 0 क्या होता है? 0। So for x equal to pi by 2, for x equal to pi by 2, for x equal to pi by 2, और फंक्शन इज 0, so this is 0, यहाँ पर 0 पर होगा। नाउ अभी आपको मूव करना है x की वैल्यू पाई की ओर और x की वैल्यू 0 की ओर, है ना। x की वैल्यू पाई की ओर टेंस करना है, तो x टेंस टू पाई, है ना। x इक्वल टू पाई नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि पाई पर तो हमारा फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। तो हमें क्या करना है? पाई के अंदर नहीं जाना है, लेकिन पाई के एकदम नजदीक चले जाना है और देखना है कि क्या हो रहा है ना। तो उसको बोलते हैं एक्स टेंस टू पाई। सो ओवर एक्स इज मूविंग टुवर्ड्स पाई, तो जैसे जैसे हम एक्स के नजदीक जाते जाएंगे ऐसे ऐसे धीरे धीरे, तो क्या होगा? तो इट विल बी कॉस पाई अपॉन साइन पाई। कॉस पाई की वैल्यू होती है -1 और साइन पाई की होती है 0, तो दैट इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। तो जैसे जैसे हम एक्स की वैल्यू ऐसे ऐसे पाई के नजदीक जाएंगे ना, तो ये वैल्यू क्या होगी? माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी। हमारा हमारा कॉट एक्स कहाँ पर जाएगा? माइनस इन्फिनिटी तक। तो ऐसे जाएगा, ऐसे ड्रॉ करो, ऐसे 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 जाएगा, ठीक है। और व्हेन एक्स टेंस टू 0, और एक्स टेंस टू 0 ही कर दो, चलो एक्स टेंस टू 0 करें तो क्या होगा? इट विल बी कॉस 0 अपॉन साइन 0। कॉस 0 क्या होता है? 1, और साइन 0 क्या होता है? 0। 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी आएगा। तो जैसे जैसे हम 0 के नजदीक जाएंगे ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो हमारा फंक्शन क्या होगा? प्लस इन्फिनिटी जाएगा। तो ये फंक्शन ऐसे बढ़ता जाएगा, इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। ये टच नहीं करेगा, एकदम पैरेलल रहेगा नजदीक, तो ऐसे आएगा फंक्शन। क्लियर? शेप समझ में आया? क्लियर स्टूडेंट्स? तो ऐसे पाई बाय 2 पर, ऐसे 3 पाई बाय 2 पर भी आपको ऐसे ही ग्राफ मिलेगा, है ना। ऐसे एकदम टच टू टच ड्रॉ करना है, फील करो आप ऐसे, ये डन। और ये साइड भी आएगा, तो यहाँ पर ऐसे होगा और यहाँ पर भी ऐसे होगा, है ना। पॉजिटिव डायरेक्शन में इन्फिनिट, नेगेटिव डायरेक्शन में इन्फिनिट। सो रेंज इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, सो रेंज इज आर। क्लियर? सो दिस इज द ग्राफ ऑफ cot x फंक्शन। तो आपको 3 बात याद रखनी है। ग्राफ कैसे ड्रॉ किया? The domain of cot is r minus n pi and the range of cot is r, डन। और जो भी फंक्शन पर डिफाइन नहीं है ना, वहाँ पर ग्राफ में आपको डॉटेड लाइन कर देनी है, और उसके बाद उसकी जो टेंडेंसी है डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स, वो आपको चेक करना है। तो 0, माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी मिलेगा, तो आप ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे। वेरी सिंपल, डन। So this is our fourth function. Now last two functions, sec and cosec. So fifth function,
our f of x is sec x. So what is sec x? 1 upon cos x. सो अगेन फंक्शन को डिफाइन होने के लिए cos x जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। 10x वाली कंडीशन आ गई। 10x में क्या था, x जीरो होगा कब, when x equal to 2n plus 1 pi by 2, ना odd multiples of pi by 2, for all the values of x which are odd multiples of pi by 2 cos x will be 0. cos x जीरो नहीं करना है तो x की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए। डन। सो हियर we can take any value of r except these values of x. So our domain is all real number r minus 2n plus 1 pi by 2। डन। अभी इसकी रेंज देखो, इसकी रेंज है ना एकदम मस्त है। द रेंज ऑफ सेक विल बी माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में आप ऐसे ओपन ब्रैकेट करो। डन। ये रेंज है। इसकी वैल्यू है ना -1 और 1 के बीच में नहीं आएगी, है ना। द वैल्यू ऑफ सेक एक्स विल नेवर बी बिटवीन -1 to 1। कैसे, ग्राफ देखने से पता चलेगा। देखो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हम लेंगे x की वैल्यूज और अकॉर्डिंग टू वैल्यूज ऑफ x वी आर गेटिंग द वैल्यूज ऑफ y, और y इज नथिंग बट योर फंक्शन f of x which is sec x। सो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x। यूनिट सर्कल पर हम क्या कंसिडर करते हैं, 0 पाई पाई बाई 2 हुई। यहाँ पर आपको लिखना है 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई। एक रिवोल्यूशन तक लिखना है, बाकी इनफाइनाइट तक जाएगा, है ना। सब कॉमन मेथड ही है, एक ही लॉजिक से चलना है। -π/2 -π -3π/2 -2π। दूसरा से रिवोल्यूशन लेफ्ट साइड पर ले लिया। अभी देखो sec x इज नॉट डिफाइंड फॉर विच वैल्यूज, फॉर ऑल दी ओड मल्टीपल्स ऑफ π/2। तो π/2 3π/2 -π/2 3π/2 वहाँ पर हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो वहाँ पर क्या करना है, डॉटेड लाइन। तो ये डॉटेड लाइन ये हो गई, 3π/2 पर डॉटेड लाइन हो गई। डॉटेड लाइन क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी रेंज में नहीं है ना। x की वैल्यू हम सपोज π/2 ले ले तो हमारा फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। क्यों नहीं डिफाइन होगा, क्योंकि वो वैल्यू के लिए डिनोमीटर जीरो हो जाएगा। ये रेशनल नंबर में डिनोमीटर में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। वो टेबल सिखाई, वो टेबल एक बार देख लेना कौन सी वैल्यू है। तो ये हो गया। नाउ द वैल्यू ऑफ फंक्शन विल बी -∞ to -1, और -1 ये नीचे नेगेटिव साइड में यहाँ पर -1 होगा कहीं पर भी, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में यहाँ पर कुछ भी 1 होगा। इसके बीच में ये सेक की वैल्यू नहीं आएगी, या तो ये ऊपर रहेगी या फिर ये नीचे रहेगी। कैसे, सो फॉर दैट लेट्स कंसिडर x इक्वल टू π/2, है ना। कहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर, है ना। π/2 के आजू बाजू में हम चेक करते हैं। सो इफ यू आर टेकिंग x इक्वल टू π/2 दैट मीन्स x टेंड्स टू π/2, है ना। π/2 नहीं लेना है, लेकिन π/2 के नजदीक चले जाना है। सो व्हेन x टेंड्स टू π/2 क्या होगा, इट विल बी 1 अपॉन cos π/2। cos π/2 is 0, so we are moving towards the infinity, and infinity is plus infinity। तो जैसे जैसे हम x π/2 के नजदीक जाएंगे, है ना। देखो x इक्वल टू 0 चेक कर लो पहले, है ना। 0 पर क्या होगा, सपोज इफ यू आर टेकिंग x इक्वल टू 0 तो क्या होगा, इट विल बी 1 अपॉन cos 0, 1 अपॉन 1 तो 1 है। तो x इक्वल टू 0 पर हमारी इनिशियल कंडीशन कहाँ पर, हम यहाँ पर खड़े हैं, है ना। x इक्वल टू π/2 के नजदीक तो जाना है, लेकिन नजदीक जब जा रहे हैं तब कहाँ पर खड़े हम, यहाँ पर 1 पर है। फॉर x इक्वल टू 0 वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 1, है ना। फॉर x इक्वल टू 0 f of x f of 0 sec 0 1 upon cos 0 1 upon cos 0 is 1/1 यहाँ पर है। अभी 0 से हम यहाँ से π/2 के नजदीक जा रहे हैं, तो क्या होगा, वी विल मूव टुवर्ड्स दी पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो जैसे जैसे यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ से हम ऐसे ऊपर जाएंगे, ऐसे ऐसे। आया समझ में, यहाँ पर टच नहीं करेगा, ऐसे पैरेलल में ऊपर जाएगा। और यहाँ से राइट डायरेक्शन में गए, अभी यहाँ से हम लेफ्ट डायरेक्शन में -π/2 की ओर जाए तो x टेंड्स टू -π/2, तो क्या होगा, इट्स 1 अपॉन cos -π/2। -π/2 क्या होता है, cos π/2 ही होता है। cos π/2 क्या होता है, 1/0। तो ये भी कहाँ पर जाएंगे, प्लस इन्फिनिटी। आया समझ में। x इक्वल टू -π/2 के लिए cos -π/2, तो cos -x विल बी cos x,
So cos minus pi by 2 equal to cos pi by 2. So cos pi by 2 is 0, तो 1 by 0, so infinity. So again यहाँ से हम नेगेटिव माइनस पाई बाई टू की ओर जाएंगे ना, तो भी हम कहाँ पर मूव करेंगे, प्लस इन्फिनिटी, तो प्लस इन्फिनिटी ऊपर ही आएगी, तो ऐसे ऐसे आप ऊपर जाएंगे, तो ऐसे एक मिलेगा आपको ऐसे ग्राफ। क्लियर? तो यहाँ पर 1 के ऊपर ही रहेंगे आप, है ना, फॉर x इक्वल टू 0 के आसपास। नाउ सिमिलरली पाई के नज़दीक जाओ, है ना, तो आप खुद से चेक कर पाएंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, पाई पर आप ऐसे -1 पर रहेंगे, और जैसे जैसे पाई बाई टू की ओर मूव करेंगे नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएंगे, और जैसे ही आप 3 पाई बाई टू पर मूव करेंगे आप फिर से नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएंगे, तो ऐसे ग्राफ मिलेगा। सो इक्वल टू 0 के लिए ऊपर वाली पॉजिटिव इन्फिनिटी, पाई के लिए नीचे, और यहाँ पर भी आएंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, ऐसे ही ग्राफ मिलेगा, एक यहाँ से नेगेटिव इन्फिनिटी और इस बार नेगेटिव इन्फिनिटी। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ योर sec x। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर इसकी रेंज क्या है, देखो 1 से ऊपर, सो माइन 1 टू इन्फाइनाइट, और यहाँ पर -1 टू माइनस इन्फाइनाइट। सो combining both the range, so it's a minus infinity to -1 union 1 to infinity. So this is the graph of your sec function. और लास्ट वन cosec x, cosec x भी देख लेते हैं सेम लॉजिक से। लास्ट फंक्शन our f of x, and that is equal to cosec x, which is 1 upon sin x. So cosec x को डिफाइन करने के लिए डिनोमीटर 0 नहीं होना चाहिए, sin x नेवर बी 0। sin x 0 कहाँ पर होता है, when x इक्वल टू n पाई, है ना, sin x 0 नहीं होना चाहिए, तो x की वैल्यू भी n पाई नहीं होनी चाहिए। So you have to consider all the values of x except integral multiples of pi. So here our domain में आप कुछ भी ले सकते हो except these values n pi। इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई नहीं लेना है, क्योंकि आप पाई 2 पाई 3 पाई या फिर माइनस पाई -2 पाई -3 पाई या फिर 0 लेंगे तो ये साइन 0 हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। सो दिस इज डोमेन। नाउ रेंज जो सेक की रेंज थी वही ये कोसेक की आएगी, कैसे आएगी, माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। कैसे आएगी, देखो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि ये ग्राफ आपको खुद से एक बार ट्राई करना चाहिए, है ना, तो सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलो आप ट्राई कर देना, लेकिन मैं दिखा देता हूँ। दिस इज 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 2 पाई, और यहाँ पर हमारा फंक्शन आएगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू cosec x। डन? नाउ डॉटेड लाइन डॉट, हाँ बोलो। एक्सरसाइज 3.2, total 10 questions are there. Out of 10 questions, first 5 questions with similar method and remaining 5 questions with another same method. What you have to do? So question number 1, देखो, here we are given trigonometric ratio cos x equal to -1 by 2, and question is find the remaining all trigonometric functions। remaining all total होते हैं कितने, 6। out of 6 trigonometric ratios, 1 trigonometric ratio is given, you have to find remaining 5 trigonometric ratios, वो आपका question। and condition is here our x lies in third quadrant, this is important one, x lies in third quadrant। डन? थर्ड क्वाड्रेंट, कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं ना, तो ये यूज करेंगे हम। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। क्या सिखाया था, ऑल एस टी सी, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एस मींस साइन एंड कोसेक,
साइन एन कोसेक, साइन और उसका रेसिप्रोकल, कॉस नहीं, साइन एन कोसेक, साइन एन कोसेक पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टी, टी मीन्स टेन, टेन और उसका रेसिप्रोकल कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट सी, सी मीन्स कॉस, कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। ऑल रिमेनिंग नेगेटिव, है ना। यहाँ पर सारे 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, यहाँ पर सिर्फ साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, बाकी के 4 नेगेटिव। यहाँ पर टेन एंड कोट पॉजिटिव और बाकी के 4 नेगेटिव। यहाँ पर कॉस एंड सेक पॉजिटिव और उस बाकी के रिमेनिंग है वो सब नेगेटिव। नाउ फॉर दिस सम और एक्स लाइज इन विच क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट हमारा है। तो यहाँ पर जो भी आंसर आएगा उसमें हम टेन और कोट को पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, बाकी सब कैसे होंगे, नेगेटिव। देखो कॉस भी नेगेटिव दिया है ना, सिर्फ टेन और कोट ही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब कैसे रहेंगे, नेगेटिव। 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कौन से होते हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, cot x, sec x and cosec x. Out of the 6 trigonometric ratio, 1 is given. You have to find the remaining one. Done? तो ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। उसके बाद हमारी आइडेंटिटीज थी, शायद किसी को याद होगी, 10th स्टैंडर्ड में थी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, है ना। ये मैंने आपको एक लिखाया था। अभी इसको डिवाइड करो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 को दोनों साइड साइन स्क्वायर से डिवाइड करो, है ना। हमने 10th में स्टडी किया था कि 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, 3 नहीं होती है, एक ही है, और इसके ऊपर से दोनों डिराइव किए। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 को साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो, तो साइन स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स 1, कॉस स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स को डिवाइड करो, सो इट्स अ कॉट स्क्वायर एक्स एंड 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। तो टीचर बोलते थे आपकी दूसरी आइडेंटिटी, तो ये दूसरी नहीं, पहली है। साइन स्क्वायर से डिवाइड किया, अभी कॉस स्क्वायर से डिवाइड करो, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, इट विल बी टेन स्क्वायर एक्स, cos square x upon cos square x 1 and 1 upon cos square x which is our sec square x। डन। तो एक आइडेंटिटी थी, उसमें आप अलग अलग घुमा घुमा के कुछ भी करते थे, तो ये 3 आइडेंटिटी है, ये यूज करनी है, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो देखो यहाँ पर 1 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज गिवन, यू टू फाइंड रिमेनिंग 1। तो हमें पता है कि हमारे पास cos हो और एक साइन आ जाए तो बाकी के सब हम फाइंड कर सकते हैं। तो cos दिया है और साइन फाइंड करना है, तो ये आइडेंटिटी लगाएंगे। सो नाउ our sin square x plus cos square x equal to 1. So we are finding our sin square x. So sin square x equal to 1 minus cos square x. So this is equal to 1 minus cos x given minus 1 by 2 whole square. So sin square x equal to 1 minus 1 minus और minus 1 by 2 का स्क्वायर होगा 1 by 4 और इसका सिंप्लीफिकेशन होगा 3 by 4, है ना। 4 1 जा 4 minus 1 3 by 4. So sin square x equal to 3 by 4 और इसका स्क्वायर रूट लेंगे ना, तो साइन एक्स इक्वल टू वी आर गेटिंग प्लस और माइनस रूट 3 by 2, ये हमारा आंसर आएगा। साइन एक्स की दो वैल्यू मिलेगी, प्लस और माइनस रूट 3 by 2। बट क्या, और एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स कहाँ पर है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन और कोटी पॉजिटिव होता है, बाकी सब कैसी होती है, नेगेटिव। तो हमारा साइन कैसे होगा, नेगेटिव। सो हियर एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, you have to consider the negative sign. So now you have to write the answer. Now we are taking sin x equal to प्लस और माइनस वैल्यू है ना, प्लस और माइनस रूट 3 by 2, तो कंसिडर करेंगे माइनस रूट 3 by 2। और यहाँ पर आपको लिखना है रीजन एज x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर। तो आपका ये साइन एक्स हो गया। अभी आपके पास साइन एक्स है, कॉस एक्स है, बाकी सब मिलेगा। सो साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स दिया है। नाउ टेन एक्स, फॉर टेन एक्स it's a ratio of sin x by cos x. Sin x by cos x, sin x is minus root 3 by 2 and cos x is minus 1 by 2, 2 2 got minus minus plus, so it's a root 3. So third ratio, third trigonometric function tan x equal to root 3 ना। अभी हम इसको फंक्शन बोलेंगे, रेशियो नहीं बोलेंगे। 10 आ गया। अभी cot के लिए cot x is the reciprocal of tan x, 1 upon tan x, उल्टा से उल्टा कर दो तो tan x को रेसिप्रोकल, सो इट्स 1 अपॉन रूट 3, कॉट एक्स हो गया। सेक एक्स के लिए इट्स अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस एक्स का रेसिप्रोकल -2 और उसके बाद कॉसेक एक्स
cosec x, which is reciprocal of sin x. Sin x is माइनस रूट थ्री बाई टू, उसका रेसिप्रोकल -2/√3। तो चेक करो यहाँ पर देखो, सेक नेगेटिव, कॉसेक नेगेटिव, कॉट एंड टेन पॉजिटिव, साइन नेगेटिव एंड कॉस नेगेटिव। क्लियर? बिकॉज और एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन एंड कॉट दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, उसके अलावा सब नेगेटिव। तो यहाँ पर टेन हमारा पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। क्लियर? बोलो। सो हियर और cosec is not defined for the integral values of pi. So pi पर आपको वैल्यू कंसिडर नहीं करनी है। सो पाई, 2 पाई, -पाई, -2 पाई। डन। तो सबसे पहले यहाँ पर x इक्वल टू पाई बाई टू चेक करते हैं। सो व्हेन x इक्वल टू पाई बाई टू और फंक्शन f ऑफ x विल बी 1/sin पाई बाई टू, 1/sin पाई बाई टू, 1/1 इक्वल टू 1। सो फॉर x इक्वल टू पाई बाई टू और वैल्यू विल बी 1, यहाँ पर होंगे 1, यहाँ पर सपोज 1 है और यहाँ पर सपोज हमारा -1 है। फॉर x इक्वल टू पाई बाई टू वी आर गेटिंग वैल्यू 1। नाउ अभी पाई बाई टू से पाई की ओर और पाई बाई टू से 0 की ओर मूव करना है। सो व्हेन x टेंस टू पाई, है ना, x टेंस टू पाई, हम x की वैल्यू पाई नहीं ले रहे हैं, x टेंस टू पाई, पाई की ओर हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। सो क्या मिलेगा हमें? सो अवर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/sin पाई, 1/sin पाई, sin पाई इज 0। सो वी विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो जैसे जैसे अब यहाँ से अब ऐसे ऐसे जाएंगे तो फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट तक जाएगी। तो यहाँ से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फंक्शन की वैल्यू ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगी। चली गई? चली गई। नाउ अभी आपको यहाँ से 0 की ओर जाना है। सो व्हेन x टेंस टू 0, 0 नहीं लेना है ना, क्योंकि ये डॉटेड लाइन है, ये भी डॉटेड में आएगी, 0 मल्टीपल ऑफ पाई। तो जैसे जैसे x की ओर जाएंगे यहाँ पर, जैसे जैसे फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट तक जाएगी। कैसे? सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/sin 0, sin 0 भी 0, सो प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ पर भी क्या होगा? ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा। डन। सो पाई बाई टू पर ऐसे जाएगा। जैसे आप 3 पाई बाई टू पर आएंगे तो यहाँ से आप माइनस इन्फिनिटी मिलेगा आपको ऐसे, है ना। और यहाँ पर भी -पाई बाई टू पर आएंगे तो वहाँ पर भी ऐसे आपको एक माइनस इन्फिनिटी वाला कर्व मिलेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? और यहाँ पर -3 पाई बाई टू आएंगे तो यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे मिलेगा। सो हियर द रेंज ऑफ फंक्शन इज 1 to infinite, -1 to -infinite। So range is -infinite to -1 union 1 to infinite। Done. So this is the domain and range of the all trigonometric functions. So now we are going to start our exercise 3.2 total। बोलो।